दिए गए और तीनों आपस में इंटर रिलेटेड हैं। नाउ ब्रांस्टेड कंसेप्ट, इसका टेक्सचुअल प्रोफाइल आपको ब्रांस्टेड कंसेप्ट में सबसे पहले इसकी इंट्रोडक्शन कि किस बेस पे लाउरी एंड ब्रांस्टेड ने एसिड और बेसिस को डिस्क्राइब किया। सेकंड टेक्सचुअल पॉइंट, इसके पाइनियर्स, दो पाइनियर्स थे, लाउरी एंड ब्रांस्टेड। थर्ड टेक्सचुअल पॉइंट में लाउरी एंड ब्रांस्टेड ने एसिड और बेसिस को कैसे डिफाइन किया और फिर उसके एग्जाम्पल इक्वेशंस की मदद से। इसके बाद बेटा नेक्स्ट टेक्सचुअल पॉइंट, ब्रांस्टेड कंसेप्ट्स की लिमिटेशन, और लास्ट टेक्सचुअल पॉइंट ब्रांस्टेड कंसेप्ट को यूज करके एम्फोटेरिक बिहेवियर ऑफ वाटर को समझना। तो सबसे पहले बेटा मैं थोड़ा सा रिवाइज करा दूं। इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था इन ब्रांस्टेड कंसेप्ट कि लाउरी एंड ब्रांस्टेड एक्सप्लेन acid and bases on the basis of their capability to donate and accept proton. इसके पाइनियर में दो साइंटिस्ट थे, लाउरी एंड ब्रांस्टेड। अब एसिड को कैसे उन्होंने डिफाइन किया? एसिड्स आर दोज कंपाउंड्स which donate proton during chemical reaction, and bases are those compounds, those substances which accept proton during chemical reaction. प्रोटॉन के बारे में मैंने आपको बताया बेटा, हाइड्रोजन आयन इज आल्सो नोन एज प्रोटॉन। आर्हीनियस ने इस स्पेशीज को हाइड्रोजन आयन का वर्ड यूज किया, जबकि लाउरी एंड ब्रांस्टेड ने हाइड्रोजन आयन के लिए एक वर्ड यूज किया, प्रोटॉन, बिकॉज हाइड्रोजन एटम हैज ओनली वन इलेक्ट्रॉन एंड वन प्रोटॉन. When hydrogen atom loses its one electron, only one proton is left behind. Now you either call this species as hydrogen ion or you may call it proton. तो प्रोटॉन की डोनेशन और प्रोटॉन की एक्सेप्टेंस के बेस पे लाउरी एंड ब्रांस्टेड ने एसिड और बेसिस को डिस्क्राइब किया। अब अगर हम आर्हीनियस और ब्रांस्टेड कंसेप्ट को कंपेयर करें, so according to Arrhenius concept, acids ionize in water to provide hydrogen ion. But according to Bronsted concept, acids donate proton during chemical reaction. According to Arrhenius, bases are those compounds which provide hydroxide ion when ionized in water. Bases are those substances which accept proton during chemical reaction. Acid and bases should be water soluble, but according to Bronsted concept, it is not necessary for acid and bases to be water soluble. According to Arrhenius concept, or the Arrhenius concept is based on ionization, but Bronsted concept is based on chemical reaction. तो ये तो इनका कंपैरिजन था। कभी ये क्वेश्चन भी आ सकता है 3 मार्क्स के लिए कि कंपेयर Arrhenius concept with Bronsted concept, तो एटलीस्ट 3 पॉइंट्स कंपैरिजन के आप उनमें बताए। अब आ जाते हैं लिमिटेशंस। Like Arrhenius concept, Bronsted concept is also a limited concept. It also has some limitations. It also can't explain all types of acid and bases. For example, according to Bronsted concept, all acids donate proton, and proton is hydrogen ion. But those acids, those compounds like carbon dioxide, sulfur dioxide, and nitrogen dioxide, they are not proton donor. They can't provide hydrogen ion because they do not have ionizable hydrogen atom. So according to Bronsted concept, these compounds are, although they are acids, they have got acidic behavior,
if we dip blue litmus paper in these gases, the litmus will turn red and it will indicate that these compounds are acid. But according to the criteria set by Lowry and Bronsted, these compounds are not classified as acid. अब Arrhenius ने भी इनको acid नहीं कहा, लेकिन उसका different aspect था. उसने different parameter के base पे बताया कि these compounds do not contain ionizable hydrogen atom, so they are not classified acids according to Arrhenius concept. But according to Brown, these compounds are not acids because they are not proton donors. They can't provide proton during chemical reaction. Second limitation, according to Bronsted concept, a base must be proton acceptor. एक बेस को प्रोटॉन एक्सेप्टर होना चाहिए. ऐसे बहुत सारे बेसिस हैं. फॉर एग्जांपल कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड. These compounds, they are not proton acceptors, so they are not classified as bases. Although when we make aqueous solutions of these compounds, their aqueous solution will turn red litmus blue, which confirms, this activity confirms their basic or alkaline behavior. But as they do not accept proton, so according to Bronsted limitations that were found in Bronsted concept, ये भी एक limited concept है, ये भी तमाम acid और bases को explain नहीं कर सकते. Second, last इस Bronsted concept पे मैंने point आपको बता दिया था, लेकिन फिर क्लास ओवर हो गई थी और वो कंप्लीट नहीं हो सका था. वो था amphoteric behavior of water. ये वर्ड आप लोगों ने इससे पहले भी पढ़ा है. Amphoteric word, you are familiar with this word, amphoteric. In class 9th, in chapter number 8, you studied about oxides, and in chapter number 8, chemical reactivity, in class 9, your previous class, you have learned that there are 3 types of oxides. The oxides of metals are basic oxide. The oxides of less reactive metal like aluminum oxide, yes, good, that's great. And zinc oxide, lead oxide, they are amphoteric in nature because they have got both behavior, acidic as well as basic behavior. So amphoteric behavior means dual behavior. This word amphoteric, it basically means dual behavior. Dual behavior means acidic behavior and basic behavior. These compounds, they have got acidic as well as basic behavior. Due to this dual nature, we call water as amphoteric in nature. Water is amphoteric in nature because it has dual nature. It can behave both like an acid and like a base. Now, acidic और basic describe करने के लिए हम Bronsted concept को mind में ले आए. Water का acidic behavior क्या होगा? Proton donation, or it is proton donor. And basic behavior, according to Bronsted concept, it is proton acceptor. It means in some reactions, दो रिएक्शंस कोट करूंगा क्योंकि ये एम्फोटेरिक बिहेवियर केमिकल बिहेवियर है. तो केमिकल बिहेवियर को डिस्क्राइब करने के लिए एक्सप्लेन ये जरूर
जरूरी है कि इस फिनोमेना को हम एंडोर्स करें विद केमिकल रिएक्शंस। तो वाटर का ये जो एम्फोटेरिक बिहेवियर है, इसमें हम इसका डुअल बिहेवियर, इसका बेसिक बिहेवियर ऑफ वाटर, हम इसके बेस पे इसके बिहेवियर, ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा वाटर, व्हेन वाटर रिएक्ट्स विद एक्सेप्ट प्रोटॉन, ये वाटर को प्रोटॉन डोनेट कर रहा है। Here water behaves as proton acceptor, and it is proton acceptor, so it is this behavior of water to accept proton and turn into hydronium ion is the basic behavior of water. In this reaction, water is accepting proton from HCl. Being an acceptor of proton, according to Bronsted concept, this behavior of water is the basic behavior. Second, acidic behavior of water means it can donate proton, it can behave like proton donor, and those substances which donate proton during chemical reaction, they are classified as acids according to Bronsted concept. Now, when water reacts with an acid, it be base. जब water एक base के साथ react करता है NH3, तो इस reaction में water donates proton to ammonia. In this reaction, water is donating proton, it is proton donor, and proton donor is acid. So when water reacts with a base, it behaves like an acid by donating its proton. When water donates proton to ammonia gas, its molecule, molecule of ammonia gas, it accepts proton and turns into ammonium ion NH4. When water donates proton, it turns into hydroxyl ion or hydroxide ion. In this reaction, water is behaving so ये तो water का amphoteric behavior है of water or justify the state as amphoteric behavior. वर्डिंग चेंज करके क्वेश्चन डिफरेंट उसके एस्पेक्ट हो सकते हैं, लेकिन फिनोमेना सेम होगा तो आंसर वही होगा, सेम। और ये 3 मार्क्स के लिए। जी बेटा, वाटर का pH 7 है, इसका एम्फोटेरिक बिहेवियर है। अच्छा बेटा, एम्फोटेरिक बिहेवियर फिर किसका होगा? जिसमें इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं। वाटर का एक मॉलिक्यूल बेटा जब आयनाइज करता है, वाटर में भी आयनाइजेशन होती है और मैंने वो आयनाइजेशन का फिनोमेना आपको एक्सप्लेन किया था। वाटर का एक मॉलिक्यूल, व्हेन अ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ionizes, it produces 1 hydrogen ion and 1 hydroxide ion. It means in water the molar concentration of hydrogen ion is equal to the molar concentration of hydroxide ion. Therefore is 7 neutral, क्योंकि न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। जितने हाइड्रोजन आयन होंगे उतने हाइड्रोक्साइड आयन होंगे। हाइड्रोजन आयन
will nullify the effect of hydroxide ion, and as a result the pH of water it becomes 7, and 7 is for neutral. जी बिल्कुल, यू कैन ड्रा डायग्राम. बिल्कुल आप ये स्ट्रक्चरल फार्मूला के साथ भी ये शो कर सकती हो. स्ट्रक्चर फार्मूला के बेस पे कर लें या सिंपल ये मॉलिक्यूलर फार्मूला आप बता दें जिस तरीके से मैंने आपको बता दिया. Mariam Naeem, you are asking a question, sir. Why is there no sign because water gains proton? No negative sign because water gains proton. अब मेरी बेटी आप ये ज़हन में रख लें कि क्या नहीं, जरूरी नहीं है बेटी, जरूरी नहीं है कि आप स्ट्रक्चर फार्मूला दें. आप इस तरह सिंपल रिएक्शन जो मैंने आपको लिखवा दिए उस तरह भी कह सकते हैं. हाँ, स्ट्रक्चरल फार्मूला लीवियस कंसेप्ट में बताना मस्ट होता है. अच्छा मेरे बच्चे, दूसरी बेटी ने क्वेश्चन किया कि वाटर जब प्रोटॉन गेन करता है तो इस पे नेगेटिव साइन क्यों नहीं आता. इन द क्वेश्चन इज पुट फॉरवर्ड बाय मरियम नईम. अच्छा बच्चे, अब आप ये देखें, पहले तो आप जहन में रखें कि प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव. ऑब्वियसली प्रोटॉन कैरीज पॉजिटिव चार्ज. वाटर का ये मॉलिक्यूल, ये वाटर का मॉलिक्यूल है, इसमें ऑक्सीजन एटम के पास है 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. ये इस प्रोटॉन या जिसको हम हाइड्रोजन आयन कहते हैं, ये प्रोटॉन के ऊपर अटैक करता है विद द हेल्प ऑफ दिस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. वाटर ये प्रोटॉन गेन करता है और ये चेंज हो जाता है हाइड्रोनियम आयन में. ओवरऑल चार्ज हाइड्रोनियम आयन के ऊपर पॉजिटिव आ जाता है. क्यों पॉजिटिव चार्ज आता है? सबसे पहले तो हम वाटर के मॉलिक्यूल को एनालाइज करें. ऑक्सीजन एटम है एक वाटर मॉलिक्यूल में, उसमें 8 प्रोटॉन और 8 इलेक्ट्रॉन है. 2 हाइड्रोजन एटम इसके साथ कोवेलेंटली बॉन्डेड है. वाटर के मॉलिक्यूल में एक हाइड्रोजन एटम में 1 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरे हाइड्रोजन एटम में 1 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन है. तो इसका मतलब है कि वाटर में टोटल प्रोटॉन कितने होंगे? 8 + 1 9 + 1 10. तो न्यूट्रल वाटर मॉलिक्यूल में होंगे 10 प्रोटॉन और एक प्रोटॉन का चार्ज है +1. तो 10 प्रोटॉन का चार्ज क्या होगा? +10. 9 + 1 10. इलेक्ट्रॉन भी 10 है वाटर के मॉलिक्यूल में. 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है -1. 10 इलेक्ट्रॉन के चार्जेस क्या होंगे? -10. +10 एंड -10 ओवरऑल इफेक्ट इज 0. इसलिए वाटर न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है. बट व्हेन वाटर एक्सेप्ट्स अ प्रोटॉन, जब वाटर प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है, इस स्पीशी में सिर्फ एक प्रोटॉन है जिसको हम हाइड्रोजन आयन कहते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन है ही नहीं. इट हैज ओनली 1 प्रोटॉन, इसलिए इसको प्रोटॉन हम कहते हैं. अब हाइड्रोनियम आयन H3O, इसको हाइड्रोनियम आयन. अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों आया? पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर इसलिए आया कि इस हाइड्रोनियम आयन में ऑक्सीजन एटम के साथ अब आगे 2 हाइड्रोजन के एटम और 1 प्रोटॉन, जिसको लोन पेयर हाइड्रोजन ऑक्सीजन एटम ने दिया है. अब 8 प्रोटॉन 2, ये 2 हाइड्रोजन एटम के थे और 1 प्रोटॉन इसने इस रिएक्शन में गेन किया, तो टोटल प्रोटॉन हो गए 11. अब चूंकि बेटा 1 प्रोटॉन के ऊपर क्या चार्ज है? +1. तो 11 प्रोटॉन के ऊपर चार्ज क्या होगा? 11 प्रोटॉन का चार्ज होगा +11. लेकिन इस मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन नहीं बढ़े हैं, इलेक्ट्रॉन उतने ही हैं 10. प्रोटॉन इसने ये गेन किया है, तब प्रोटॉन 11 हो गए, इलेक्ट्रॉन 10 ही थे. तो 10 इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होगा? -10 सॉरी. 10 इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होगा? -10. अब इसको सॉल्व करें मैथमेटिकली. बेटा जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप देखोगे
कि इसका आंसर नेट चार्ज क्या आया, +1। तो हाइड्रोनियम आयन के ऊपर इसलिए +1 चार्ज आता है क्योंकि वाटर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन वाटर मॉलिक्यूल में सेम है, इसलिए वाटर कैरीज नो चार्ज। बट when during a chemical reaction water accepts a proton, its proton number increases by 1 unit. Therefore, hydronium ion and it attains a charge of +1. I hope मेरी बेटी आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। अगर मजीद कोई कंफ्यूजन है तो बेटी फिर आप बता दें, अगर कंफ्यूजन नहीं है तो एक छोटा सा वर्ड लिख लें यस, और अगर कंफ्यूजन है तो बता दें, मैं फिर मजीद इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ओके मेरी बेटी, ओके। तो ये तो बेटा आपको मैंने बताया कि एक बेटी ने क्वेश्चन किया कि स्ट्रक्चरल फार्मूला बताया, जिस तरह अभी मैंने ये एक्सप्लेन करते हुए स्ट्रक्चरल फार्मूला ड्रा किए, ये नेसेसरी है। लीवियस कंसेप्ट में स्ट्रक्चरल फार्मूला ड्रा करना मस्ट होता है। ब्रांचलेट कंसेप्ट में सिंपल इक्वेशन के फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन अगर आप नहीं लिखते तो फिर ये कंपल्सरी नहीं है, इसकी वजह से आपके मार्क्स की रिडक्शन नहीं होगी। अब आ जाते हैं बेटा नेक्स्ट कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। और मैंने आज के लेक्चर के शुरू में मेरे बच्चों आपको बताया था कि आर्हीनियस कंसेप्ट भी लिमिटेड कंसेप्ट था, ये भी कुछ एसिड और बेसिस को एक्सप्लेन नहीं कर सक रहा था। ब्रांचलेट कंसेप्ट की भी लिमिटेशंस हमने डिस्कस की। तो ये दोनों कंसेप्ट लिमिटेड थे और तो एक्सप्लेन नहीं कर रहे थे, इसलिए अ मोर जनरलाइज्ड कंसेप्ट वाज नीडेड। एक ज्यादा बेहतर वाइडर कंसेप्ट की जरूरत महसूस की गई कि जिन कंपाउंड्स को आर्हीनियस और ब्रांस्टेड ने एसिड और बेसिस नहीं कहा, फिर भी उनका एसिडिक और बेसिक बिहेवियर था, जिसका मैंने लेटमस टेस्ट के बेस पे आपको बताया कि उनका एसिडिक और बेसिक बिहेवियर था, लेकिन आर्हीनियस और ब्रांस्टेड कंसेप्ट उनको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। फिर एक ऐसे कंसेप्ट की जरूरत महसूस की गई जो इतना ब्रॉडर हो कि वो तमाम एसिड और तमाम बेसिस को एक्सप्लेन कर सके। तो इस पर्पस के लिए मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने अपने कंसेप्ट दिए, लेकिन एक अमेरिकन केमिस्ट थे G.N. लीवियस, उन्होंने एक ऐसा ब्रॉडर कंसेप्ट प्रेजेंट किया कि जो तमाम एसिड और बेसिस को एक्सप्लेन कर रहा था, तो बेसिस को डिफाइन किया। पहले आर्हीनियस ने एसिड को किस बेस पे डिफाइन किया? ब्रांस्टेड ने टू डोनेट प्रोटॉन। बेसिस के लिए आर्हीनियस ने कहा दे प्रोवाइड हाइड्रोक्साइड आयन, और ब्रांस्टेड ने कहा दे एक्सेप्ट प्रोटॉन। लेकिन लीवियस ने एक डिफरेंट मीडियम यूज किया एसिड और बेस को डिस्क्राइब करने के लिए, एंड दैट वाज अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पेयर के बेस पे उन्होंने एसिड और बेस को उनकी कैपेसिटी उसके बेस पे किया। ब्रांस्टेड कंसेप्ट में मैंने इंट्रोडक्शन में क्या बताया था कि इन दिस कंसेप्ट एसिड एंड बेसिस आर एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैपेबिलिटी टू डोनेट प्रोटॉन और एक्सेप्ट प्रोटॉन। इन लीवियस कंसेप्ट acid and bases are explained on the basis of their capability to accept a pair of electron or to donate a pair of electron in the formation of coordinate covalent bond. So इसका first textual point इसकी introduction। इसकी intro में मेरे बच्चों आप लोगों ने क्या बताना है? introduction में इस concept की Livius explained acids and bases on the basis of their capability
to accept or donate electron pair and formation of coordinate covalent bond or dative bond. कल एक बेटी ने क्वेश्चन किया कि this bond, can we call it the dative bond? We call it the dative bond because वो जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, this pair goes for dating to another atom to complete its outermost shell. यानी एक राउंड ट्रिप ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपने नेटिव एटम में लगाता है और एक जो डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन पेयर उसमें एक राउंड ट्रिप लगाता है. तो इट इज आल्सो नोन एज डेटिव बॉन्ड. उसको हम डेटिव बॉन्ड क्लासिफिकेशन हुई कि किस बेस पे लीवियस ने एसिड और बेसिस को एक्सप्लेन किया. ये एक डिफरेंट बिहेवियर था और ये मोर ब्रॉडर है एस्पेक्ट है क्योंकि तमाम एसिड अब तक जितने भी सर्वे किए गए हैं, अब तक जितने भी एसिड डिस्कवर हो गए हैं, ऑल आर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स और तमाम बेसिस दे आर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स. So it is more broader aspect and he used that much more broader concept to explain acid, to describe acid and bases. ये तो बेटा इसकी इंट्रोडक्शन हो गई इंट्रो. अब आ जाते हैं नेक्स्ट टेक्सचुअल पॉइंट इसके पाइनियर के बारे में. इसका पाइनियर यानी साइंटिस्ट, अमेरिकन केमिस्ट इनका नाम था G.N. लीव. एक अमेरिकन केमिस्ट थे, इनका नाम था G.N. लीवियस. उन्होंने इस कंसेप्ट को प्रेजेंट किया. इस वजह से उनके नाम के बेस पे इस कंसेप्ट का नाम रखा गया. इसके इंट्रो में हम क्या कहते हैं कि ही लीवियस explained acid and bases on the basis of their capability to accept or donate electron pair and formation of coordinate covalent bond. दो चीजें, दो एस्पेक्ट यूज किए थे. एक तो इलेक्ट्रॉन पेयर की एक्सेप्टेंस और डोनेशन, और सेकंड when they donate or accept electron pair they make coordinate covalent bond. जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं तो ये एक कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड. अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा, एग्जांपल जब एक्सप्लेन करूंगा कि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसे होती है. नेक्स्ट टेक्सचुअल पॉइंट है डेफिनेशन ऑफ एसिड एंड बेसिस, कि उन्होंने अब एसिड और बेसिस को कैसे डिफाइन किया. एसिड्स की डेफिनेशन, एसिड्स आर दोज सब्सटेंसेस, एसिड्स ऐसे सब्सटेंसेस हैं which accept an electron pair during chemical reaction to make coordinate covalent bond. एसिड्स ऐसे सब्सटेंसेस हैं, मैंने आर्हीनियस और ब्रांस्टेड कंसेप्ट में कंपाउंड का वर्ड यूज किया, यहां मैं सब्सटेंस का वर्ड यूज कर रहा हूं क्योंकि एक एसिड सब्सटेंस भी हो सकता है और एक कंपाउंड भी हो सकता है और ये एक पॉजिटिव आयन, सिंगल आयन भी हो सकता है. तो आयन कंपाउंड नहीं है, इसलिए यहां मैंने एक मोर जनरलाइज्ड टर्म यूज किया है, सब्सटेंसेस.
Acids are those substances which can accept an electron pair during chemical reaction to make coordinate covalent bond. Acids are those substances which accept electron pair. And when do they accept electron pair? They accept electron pair during chemical reaction. When acids are subjected to a chemical reaction, during that chemical reaction, they do accept an electron pair. And with the acceptance of that electron pair, they are coordinate covalent bond. According to textual requirement, सिर्फ अगर आप कहेंगे कि एसिड आर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स, वो कंप्लीट नहीं होगा. गलत तो नहीं होगा लेकिन कंप्लीट नहीं होगा. कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड दूसरा एस्पेक्ट जब बताएंगे तब bases are those substances which donate on bearing to make coordinate covalent bond. से बिल्कुल डिफरेंट भी है होंगी जो केमिकल रिएक्शन के दौरान इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे. इसका मतलब है कि लीवियस एसिड भी कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है और लीवियस बेस भी कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, लेकिन उन दोनों के अप्रोचेस डिफरेंट है. एसिड्स में कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बाय एक्सेप्टिंग एन